Now we have our next speaker, Dr. Ashwin Sawant, and I request Ruby ji to please introduce him. Good afternoon, everyone. I would like to introduce our next speaker, Dr. Ashwin Samant. He is BAMS from Shet RV Ayurvedic College, Sain, Mumbai, MA in Sanskrit from Mumbai University, MBA in Healthcare Services from SMEU, PhD from Mumbai University, subject hygiene and ancient India. He has written more than 3,000 health articles in various newspapers, magazines, etc. He is invited by many institutes to speak on health and Ayurveda related subjects. He has done more than 25 live TV programs on various health issues in various channels. He has done 7 radio programs on various health subjects. He has been awarded by Zandu Ayurvedic Company for his contribution towards Ayurveda. His new research papers are published so far. His 9 research papers are published so far. He has done research presentation in the Indian Science Congress organized by Mumbai University in January 2015. His subject was Surgery in Ancient India. He has achieved black belt in Ashihara Karate at the age of 38. He is a regular yoga practitioner and advises yoga, pranayam and asanas to almost all patients of various diseases with successful results. His book published on diabetes in Marathi, Madhumeh Virudh Apad, published and forwarded by Honorable Dr. Sanjay Oak Sir, is well appreciated. First edition of 2000 books is sold and now it is getting translated into English, Gujarati and Hindi. His forthcoming books are Ritu Sanhita, Jal Puran, Apan Jaan Ka Hote Ho. Pardon? Apan Jaan Ka Hote Ho. I am not a Marathi speaker, sorry. He is passionate about ancient Indian sciences, practicing in Mulund at his own Shaswat Ayurvedic clinic. Recognition as an authentic Ayurvedic physician with clinical experience of 30 years. Let's welcome him on the stage with big rounds of applause. Thank you. Hello. नमस्कार, हाउ आर यू? हाय, कैसे आप लोग? कसे आहात? केम छो? મારો ગુજરાતી આટલો બધો સારો નથી, તો ગુજરાતી પેશન્ટના માટે ધીરે ધીરે પ્રેક્ટિસ થઈ, લેकिन લેક્ચર नहीं दे पाऊँगा. आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड इन हिंदी, आई एम बेस्ट इन मराठी, so the English would be better, whereas Hindi and Marathi with English, Gujarati speaking is not possible. If you speak with me, I can understand very well. So, first of all, I congratulate all students. If you turn it towards me, it's better. Is this enough? So, congratulations to all of you, all students who have gained this success. आप सभी का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह सक्सेस आप आया है. एंड आई एम सिंसियरली थैंकफुल टू रोटरी क्लब एंड दिस VLS ग्रुप फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स. इट्स अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. सो आज की दुनिया में अगर सबसे ज़रूरी कुछ है तो वो शिक्षण का दान है, और वो शिक्षा दान देने में ये सभी लोग इसमें आपके पीछे हैं. मैं आप सभी का
अपने मन से अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत 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 दुर्मिल बात है कि आज इस तरह का काम आप लोग कर रहे हो। समाज को इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक घर की एक लड़की, एक घर का एक लड़का जब अच्छी तरह उच्च शिक्षित हो जाता है तो वो पूरा कुटुंब, वो पूरा परिवार आगे बढ़ जाता है। वी ऑल नो दैट, वी हैव एक्सपीरियंस दैट। तो ये आगे बढ़ते हुए हम आप लोग इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। आप कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, आपको कैसे बैठना चाहिए, हाउ यू शुड स्टैंड, हाउ यू शुड एंटर, हाउ यू शुड स्पीक, how you should progress. Everybody, all of you have given very good comments. I was observing you, all of you are really good. The thing is, to do this, whatever may be your profession, whatever field you may choose to become something, say doctor से लेकर hair dresser तक, I'm covering everything. डॉक्टर से लेकर हेयर ड्रेसर तक, कॉस्मेटिशियन से लेकर एक IT प्रोफेशनल तक, whatever may be the field, you have to be fit first, you have to be healthy first, and that is what we are lacking today. आपको लगेगा कि अरे नहीं क्या बात कर रहा है, हम तो बहुत फिट है। तो हम अगर फिट है तो आज के डेट में इस इंडिया में लगभग 10 करोड़ डायबिटिक पेशेंट क्यों है? कितने? 10 करोड़। दे आर सेइंग इट इज़ 8 करोड़, बट इट इज़ फॉल्स, इट मस्ट बी 10 करोड़, अप्रॉक्स 10 करोड़। मैं ये सब लेक्चर्स 2000 साल से दे रहा हूँ, और मैं 2000 से बोलते आ रहा हूँ कि 2025 तक ऐसे होने वाला है, और 2025 2 साल पे आ गया। 2025 में वी विल क्रॉस चाइना एंड वी विल बिकम द किंगडम ऑफ डायबिटीज। After between 2025 to 2030, we will have most obese people in the world in our country. सबसे ज़्यादा मोटे लोग हमारे कंट्री में रहेंगे। Next sentence is very dangerous, which is from my book. I checked it again and again. I checked it again and again. That sentence is, by 2030, cancer will increase 500 times. 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 100 गुना नहीं, 500 times. There will be one person in every family will be suffering from Alzheimer, dementia, स्मृति भ्रंश। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट तो आप सभी के घर में रहेंगे। आपके हर एक के घर में या तो डायबिटीज़ है, या तो ब्लड प्रेशर है, या तो हाइपोथायराइड है, या तो हाइपरटेंशन है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। तो इस तरह की समाज जो है, ये समाज लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे पंतप्रधान सपने देख रहे हैं कि हमारी कंट्री दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बनेगी, is going to be most influential country in the world, and is this the society who can achieve that? Is it possible? और इसीलिए आप कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करने जाओ, कोई भी काम हो, आपका फिटनेस सबसे ज़रूरी है। विदाउट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स वी आर डूइंग, ब्रॉड मिस्टेक्स स्पेसिफिकली of those who are from young generation and also from adult generation, उसके कुछ important points मैं सिर्फ आपके पास सामने रख रहा हूँ। What is average lifespan of Indians? पूरे दुनिया में लाइफ स्पैन यानी कि जो कोई भी एक व्यक्ति किसी भी देश में अगर जन्मता है तो अंदाजे लगभग ये इतने साल जिएंगे, वो जो लाइफ स्पैन है आपके सामने मैंने रखा है। देख के बुरा लगेगा कि श्रीलंका और नेपाल भी हमारे आगे है। खुशी इस बात की हो सकती है कि पाकिस्तान हमारे पीछे है। The America, which is considered having best healthcare system in the world, they too are far behind. Japanese are the best. Monaco is number 1. ये जो situation है, and consider this is the average lifespan. आज के डेट में आफ्टर 50 no male can say that I will live now till 100. After 50 every male is having fear कि any time I can get heart attack.
Same applicable to women after 60. These are the scientific facts in India. There are some factors which are negative towards South Asians. हम South Asians है, नेपाल से लेकर म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये साउथ एशियंस को कुछ फैक्टर अनफॉर्चुनेटली कुछ निगेटिव है. We have to accept that, but out of that, why are we having so less lifespan, expected lifespan? And you will see it is going, after every 5 years it is going low. इसके कारण क्या है ये देखते हैं और उसी में से these are the reasons in front of you. There was a time when infectious diseases जिसको टाइफॉइड, कॉलेरा, जॉन्डिस, दिस एंड दैट, इसके वजह से इंडियन ज़्यादा मरते थे, जो अभी आप देखिए बहुत कम हो चुका है, विच इज़ नाउ 40%. और नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हम जानते हैं, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, कैंसर, थायराइड एंड ऑल. थायराइड कैन नॉट बी कॉज ऑफ डेथ, बट इन लॉन्ग टर्म it is presently 50%, 10% accidents, right? By 2030, that is within 7 years from now, this figure is going to be 83%. 83% of Indians will die due to lifestyle diseases, which are preventable, which we can prevent very easily, confidently. Now this, अभी हुआ ऐसा है, हम सभी की मानसिकता इस तरह हो चुकी है कि अरे इतने बड़ा बड़ा फोर्टिस हॉस्पिटल है, जुपिटर हॉस्पिटल है, इस मुल्क में आज एक से एक हॉस्पिटल है, एक से एक डॉक्टर है, क्या चिंता है? कुछ हो गया तो जाएंगे एंजियोप्लास्टी करेंगे, एंजियोप्लास्टी नहीं हुआ तो बाईपास करेंगे, डायबिटीज हुआ तो गोली लेंगे, गोली नहीं तो इंजेक्शन लेंगे इंसुलिन के. डू यू थिंक दिस आर द ट्रीटमेंट्स? These are the treatment which will just keep you alive. They will not make you fit. They will never make you healthy. और लोगों की ये मानसिकता पिछले 70-80 साल में दुर्भाग्य से एलोपैथी की वजह से हो गई है कि बीमारी हो गई, ये गोली खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, गोली लो, शुगर बढ़ गया, गोली लो, थायराइड हो गया, गोली लो, हार्ट अटैक आने वाला है, गोली खाओ, नहीं एंजियोप्लास्टी करो, नहीं होता है बाईपास करो, कुछ ना कुछ करते रहो, हमारे पास आते रहो, पैसा देते रहो, राइट? हमें आई विल रिक्वेस्ट यू, आप लोगों की यह आदत अच्छी है तालियां बजाने की, लेकिन आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, आपको हर 2 वाक्य के बाद देना पड़ेगा और मेरे पास समय कम है, तो आप सिर्फ सुनिए, एंड में भरपूर तालियां बजानी है, बिकॉज आफ्टर एवरी सेकेंड और थर्ड सेंटेंस यू विल हैव टू क्लैप. आई हैव सच मटेरियल, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप इट, एंड में भरपूर तालियां बजाइए. द थिंग इज दिस, हमको आदत लग गई है, और डॉक्टर मला काहीतरी औषध द्या ना, पोट साफ होत नाही, हो साखर वाढली औषध द्या ना, कोलेस्ट्रॉल वाढले औषध द्या ना, भाई कोई दवाई आपो ना, मैंने पेट साफ होता नहीं. क्यों? अरे पेट साफ क्यों नहीं आता, उसके कारण ढूंढना. पेट क्यों बढ़ गया वो सोच. वाई योर थायराइड इज इनएक्टिव, वाई योर शुगर इज रेज्ड, वाई योर कोलेस्ट्रॉल हैज गॉन हाई, व्हाट इज रॉन्ग? It is absolute lifestyle. It is so simple. These diseases were not there 100 years back. Whatever anybody may be saying, please don't believe it. Don't believe it at all. These diseases were not there 100 years back. Very rare. Statistical data from African and Asian countries, thousands of peoples and community surveys are there, were telling that there was no cancer, there was no heart attack, there was no diabetes, very rare. Diseases were खरजवाट હતા અને પછી હત્તી રોગ હતા, इस प्रकार की बीमारियां थी, जुलाब था, कॉलेरा था, वगैरह वगैरह, ऑल वेर इन्फेक्शन्स विच वेर ड्यू टू नॉन हायजेनिक प्रॅक्टिसेस. स्वच्छता करायचं नाही, पाणी स्वच्छ नव्हतं, वगैरह वगैरह कारणांमुळे त्यांना ते आजार होत होते. अब ये जो बीमारियां हैं हमारे आपके कंट्रोल में है, फिर भी ये परिस्थिति क्यों है, और हमने इसका आंसर क्या ढूंढा है? ये आंसर नहीं है, इस हॉस्पिटल से हमारा काम नहीं होने वाला. कंसिडर when you invest 1,000 rupees, you are expecting at least 2,000 rupees back. हाँ,
जोशी साहेब 1 करोडची फॅक्टरी टाकतात तर म्हणतात निदान 2 करोड तो परत मिळायला पाहिजे आम्हाला. नथिंग रॉंग इन दॅट. इज अ बिझनेसमॅन. नाउ कन्सिडर these hospitals have invested approximately 1,000 crore while forming that hospital. They are expecting return of 10,000 crores. And they are waiting the whole India to become sick और कभी हमारे 10,000 के 20,000 करोड़ कब बन जाए. And it is said that this will be continued for next 100 years at least. So if we start now, please listen to me carefully, we will correct when your grandsons will be here, your age, those who are in 20s. आपकी ग्रैंड डॉटर ग्रैंडसन के वक्त ये इंडिया हेल्दी बनने वाला है. उसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं. आप लोग नहीं बनने वाले. कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बदल करो तो शायद आपके बच्चों के बच्चे हेल्दी बन जाए. सुनने को बुरा लगेगा, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी द रियलिटी. इट इज गोइंग टू हैपन, बट एटलीस्ट स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट मेकिंग चेंजेस. व्हाई? The first reason which is killing Indians is smoking. And we all now know that. मैं उस पर बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ. एक बात बताना चाहता हूँ, हम ये सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि स्मोकिंग इज कॉजिंग कैंसर. बराबर है ना? ठीक है. डू यू नो दैट स्मोकिंग इज द foremost cause of heart attacks? Do you know that smoking is the foremost cause of the paralytic attack? Right? अभी हुआ ऐसे है कि दुर्भाग्य से those people who are dependent on these hospitals, जिनको लगता है अरे कुछ नहीं हुआ तो एंजियोप्लास्टी करेंगे, कुछ नहीं हुआ तो बाईपास कर देंगे. बराबर है? इफ दे आर स्मोकर्स, इसमें से कुछ भी नहीं काम में नहीं आएगा. बिकॉज एवरीथिंग इज ruined in the body. Their vessels are also very weak, fragile. तो स्टैंड डालेंगे तो स्टैंड जैसे खुल जाता है, आर्टेरियल वॉल फट जाती है, वो वहीं पे मर जाता है. राइट? यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? अभी इसमें क्या आप जानते हो अप्रॉक्स कितने केमिकल्स, कितने टॉक्सिन्स स्मोक के थ्रू जाते हैं? साइंटिफिकली स्पीकिंग 4,000 टॉक्सिन्स, एंड आउट ऑफ देम more than 50 cause cancer. So most important thing, if you want to be healthy, stay away from any type of tobacco. मैं आपके सामने ये कुछ पिक्चर्स रख रहा हूँ, and this I'm going to correlate with further slides also. See, these are the twins. ये दोनों twins है. एक स्मोकर है, नॉन स्मोकर है. फर्क देखिए. राइट? These are the twins. एक स्मोकर है, एक नॉन स्मोकर है. Because it damages your peripheral circulation. तो आपके यहाँ के सर्कुलेशन में सबसे बड़ा हैमरिंग हो जाता है. वो सबसे पहला खराब हो जाता है. We can very easily recognize है ना, अरे ये सिगरेट बीड़ी पीने वाला लगता है चेहरे से. राइट? वो जो है, वो जब पेरिफेरल तक है तो वो बूढ़ा लगेगा. When it goes inside, it start damaging your internal main organs like kidney, heart and all. ये आप जानते हैं. Now, this person who was smoking for a long time, after quitting smoking छोड़ने के बाद उसके चेहरे पे और हेल्थ में कितना अच्छा फर्क पड़ता है. Because it is said, the day you stop smoking, the day you stop tobacco, from next day body starts to recover. इतना आसान है. अभी इसमें स्मोकिंग को लोग डरते हैं, लेकिन इसको लोग डरते नहीं है. इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक्स, कैंसर, डायबिटीज नॉट टू मच एक्सटेंट, पैरालिटिक अटैक. और मैं जिस रिक्शा में बैठता हूँ, आई डोंट यूज़ कार, आई आइदर गो वॉकिंग और आई गो बाय ऑटो. तो मैं वो रिक्शा वाले को करीब मैंने मुलुंड के 40 से 50 रिक्शा वालों का टोबैको गुटखा एक ही दिन में छुटा दिया है. आप लोगों की आंखें खुलने वाली है, इसलिए वो एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ. डॉक्टर समटाइम्स हैज़ टू बी एक्टर. तो रिक्शा से उतर जाता हूँ, मुझे मालूम पड़ गया ये गुटखा खाने वाला है.
हाँ, सब एडल्ट है, इसलिए जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब समझ लीजिए। तो पैसा हो गया हमारा वहाँ पर। तो भाई कब से गुटखा खा रहे हो? हाँ हो गया, एक 8-10 साल से। अच्छा ठीक है। कभी शादी होगी? हो गया 7-8 साल। बच्चे हैं? तो ठीक है, बच्चा तो नहीं होने वाला आपको। बीबी तो घर छोड़ के जाने वाली है, या तो आपके बाजू वाले के साथ जाएगी, बाकी आप देख। क्या बोल रहे हो? क्या आप क्या मतलब? मैं डॉक्टर सावंत हूँ और गुटखा खाने वाले को, दिस पीपल डोंट नो, यंग पीपल, इफ़ एनी ऑफ यू इज़ चूइंग टोबैको और गुटखा और हुक्का जो भी है, किसी भी फॉर्म में टोबैको ले रहे हो, सबसे बड़ी बात फॉर मेल्स, यू विल लूज योर पोटेंसी। वो पुरुष नहीं रहेगा, तुम्ही तुमचं पुरुषत्व घालवून बसाल. कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, माई वाइफ इज डीलिंग विद इनफर्टिलिटी. कॉमनेस्ट कॉज, उनके स्पर्म्स या तो एक्टिव नहीं रहते, या तो एक्टिव है तो आगे बढ़ नहीं पाते, या तो डेड ही रहते हैं. ये हो गया इंटरनल स्पर्म के बारे में. सेकेंड इज परफॉर्मेंस एंड डिज़ायर, दे वॉन्ट हैव परफॉर्मेंस. इसलिए मैं उनको बोल देता हूँ आपकी बीबी बाजू वाले के साथ जाने वाली है. एंड दिस इज ए ट्रूथ, एक्चुअल फैक्ट. तो ये ध्यान रहे, ये सबसे गंभीर समस्या है. कैंसर से तो शायद आदमी मर जाए, ये हो जाए तो जाके चुन्नी भर पानी में डूब मरना पड़ेगा. Now this modern lifestyle diseases, when you think about them, people say it is because of civilization. What is civilization? हम जब तक गाँवों में, ग्रामों में रहते थे, ये आधुनिक बीमारियां नहीं थी. So some people say it is civilization. Some people say it is westernization. हमने वेस्टर्न के जो भी कल्चर, उनका फूड और उनकी स्टाइल्स अडॉप्ट किए, ये कारण है that we are having so many diseases. Some people say it is computerization. I think all are correct. Everything is correct. Right? और मुझे ऐसा प्रश्न ये मन में आता है, if you look at these figures, are we going towards a progress? हम उन्नति कर रहे हैं या अवनति कर रहे हैं? ही प्रगती आहे की अधोगती आहे? म्हणजे हे सगळं इंटरव्ह्यू, माझा हा जॉब घ्यायचा आहे, तो जॉब घ्यायचा आहे, हे करायचं आहे, IT मध्ये जायचं आहे, आपको बहुत कुछ बनना है, बहुत ये करना है. बट मोस्ट ऑफ यू, टेक इट पॉजिटिवली, मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी हेल्दी व्हेन यू रीच टू माय एज. आई एम 54 टुडे. डू यू थिंक यू विल बी एट दिस हेल्थ व्हेन यू विल बी 50? का बरं मान का आला होता है, एवढा कॉन्फिडन्स का बरं? हाँ तो खूप है, that is what. Because then if at one hand your aim to be successful in your life, to earn money, to make your family happy, absolutely right, you have to do. But at what cost? Why can't we become like Japanese? Why can't we become like Chinese? Why are we blindly following Americans? Only problem is this, we are following Americans. Useless country, useless people. No culture, no tradition, no base, no foundation. अरे हम तुम्हारे बाप हैं, हमसे क्या पूछते हो क्या खाओ और क्या ना खाए? Chinese, Japanese, they are best in the world today. I should say Japanese are best regarding many dimensions. Chinese, they are superior. They have some negative points. That is not a part which is a socio-political or geological factor, which I should not discuss here. But never forget, they all are like me. They are lean, they are fit. कुठे इथे काय अपघात झाला तर सगळ्यात पहिला मी पळून जाईन. तुमच्यातला कोण सगळ्यात तरुण असेल त्याच्यापेक्षा मी पळेन. हा फिटनेस कुठून आणताय तुम्ही? काय प्रयत्न करता आणायला? हा चायनीज लोकांमध्ये आहे, कारण त्यांच्याकडे मार्शल आर्ट्स कंपल्सरी आहे. जॅपनीजमध्ये मार्शल आर्ट्स कंपल्सरी आहे. सिंगापूरमध्ये मार्शल आर्ट्स कंपल्सरी आहे. इस्रायलमध्ये मार्शल आर्ट्स कंपल्सरी आहे. आमच्या इथे आम्ही तुम्हा मुलांना म्हटलं रोज 12 सूर्यनमस्कार मारायचे. सर सकाळी मारू की संध्याकाळी मारू? आता दुपारी जेवणानंतर तर रात्री चालेल का? 12 सूर्यनमस्कार, 3 minutes. 3 minutes.
and we don't have time. So whatever you want to achieve, go ahead. You have to be best. All people are there to guide you, but never forget your fitness is the prime motto. Dharma, artha, kama, mokshanam, arogyam mulam uttamam. सर्वम अन्यत परित्यज्य शर्रम अनुपालयेत. सब छोड़ दो, पहले हेल्थ को संभालो. हेल्थ है तो सब है. At the age of 50 you will be earning 5 lakhs rupees per month. और डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ, एंजियोप्लास्टी को जाना है, हाइपोथायराइड की गोली चालू है, और शायद क्या मालूम नहीं अभी आगे क्या होगा. What is the advantage of earning 5 lakhs rupees per month? So think about that. So this is the disease which is the present scenario of all Indians. We all are suffering from one disease which is called sitting disease. Right? अभी भी बैठे हुए हैं, टीवी के सामने भी बैठे हुए रहते हैं, ऑफिस में भी बैठे हुए रहते हैं, गार्डन में गए तो भी बैठे हुए रहते हैं, मूवी देखने गए तो वहाँ भी बैठे हुए रहते हैं. कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग चलते रहते हैं? सो पीपल आस्क मी, अरे काय नेमकं करतोच तरी काय, कसं तू म्हातारा का होत नाही, जो वय एवढं फिट का? मतलब ओनली रीजन इज, ओनली सिंपल थिंग, आई एम ऑलवेज एक्टिव. मैं बेल बजा के मुझे मला ती फाईल आणून दे, ते पाणी आणून दे, आय नेवर डू दॅट. आय मूव्ह अराउंड. मी कौतुक म्हणून सांगत नाही आहे, आत्मस्तुती होऊ नये, बट ऑलवेज बी ॲक्टिव्ह. That is the simple foundation of becoming healthy. Be active. And what this sitting disease, it is as equivalent as smoking. We all know smoking is dangerous, don't we? Sitting is equally dangerous. Equally dangerous. Can we believe sitting can be correlated to cancer also? Can you believe that? Now references are coming ahead. Researches are coming ahead which are telling, हाँ बहुत ज़्यादा बैठने वालों को some types of cancer, it is possible. So average American, how does he spend his day in hours? And since we are the followers of the great Americans, we are also following the same manner, and we are also overall our expenditure of sitting per day is average 21 hours, including 8 घंटे का 7-8 घंटे का नींद. 24 घंटे में से 21 घंटे हम लोग सोते हैं, बैठे हुए रहते हैं. And what are the hazards? See, these are the overall hazards of sitting. आपको आश्चर्य होगा कि just by sitting in this position, all of you are sitting, this you will consider as an ideal sitting, no? Right? You will be surprised to know, by continuously sitting in this position, you suffer from knee arthritis. Can you believe that? Knee arthritis कूदने से होता है, बहुत वजन बढ़ने से होता है, कैल्शियम लो है, बोन्स लो है, कार्टिलेज इज गेटिंग वॉर्न आउट, बहुत कारण है. इस तरह बैठने से भी नी आर्थराइटिस होता है. इट्स अ सिंपल डिजीज, नॉट अ डेंजरस डिजीज. फॉरगेट अबाउट ऑल अदर. सो बी एक्टिव. दिस इज अ modern tradition. Cheers. And nowadays we don't need any reason to do the cheers. Any silly reason is enough. हाँ, हमारे बिल्डिंग की लिफ्ट बंद हो गई थी, लिफ्ट चालू हो गई, चलो आज पार्टी करते हैं. पर लिफ्ट चालू हो गई तो चीयर्स करने की क्या जरूरत है? एंड व्हाट आई से, I'm going to talk on many of these subjects regarding food. What I say, I don't say that don't enjoy this. You are young, you should enjoy. But how much? When? Where? What? These are the most important things. And then that too, when we are expecting that by 2030, we will cross 10 crore, the figure of diabetic patients in India. How are we going to prevent that? Now, this is the
commonest side effect of drinking beer. Unfortunately, in young generation, शायद आप लोगों में नहीं हो, एक्चुअल बॉम्बे में हुआ है, वहाँ पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं. They had specifically invited me because someone like Mr. Joshi was a wise man. We thought वो अच्छा बोलता है, शायद बच्चे अच्छे सुनेंगे, इसलिए मुझे सोबो, so called सोबो, which is not ideal at all, but वहाँ पे मेरे बहुत सारे लेक्चर हुए, and there it was seen that beer has become like drinking a tea. आते जाते चाय कॉफ़ी पीते, वैसे आते जाते बियर पीते. And actually this is going to be the effect. Central obesity, commonest cause of beer, result of beer. और आपको लगता हो कि क्या कितनी शक्कर मिलती है? This is the sugar which you get from each beer. You get lots of sugar. We are going to talk more on the sugar. And these are the health hazards, which I don't think I need to explain that. कैंसर है, लीवर फेल्यूर है, हार्ट अटैक है, पैरालिटिक अटैक है. पैरालिटिक अटैक में अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल है. सो स्टे अवे फ्रॉम इट. मैं ये टोबैको वालों को और सिगरेट बीड़ी वालों को, जब भी मेरे पास कोई आता है तो वो मेरी भी बोलते अरे तुम्ही कसं थांबवता त्यांचं, तो दुसऱ्या दिवशी कसा बंद करतो. पण मी त्यांना सीमाताई काय करतो, मी त्यांना सांगतो, जब भी कोई पैर आता है, बात होती है, मुझे मालूम पड़ता है, हाँ मैं हो जाते हैं, आई टर्न इन टू मराठी. मग कितीचा इन्शुरन्स कितीचा काढला आहे तुम्ही? नाही पक्का 5 लाखाचा. म्हटलं बघा साधारणपणे 5 लाखात हल्ली काय होत नाही. तुमचे बायको साधारण 35ची आहे, हे मूल तुमचं 7-8 वर्षाचं आहे, तुम्ही एक साधारण निदान 1 करोडचा काढा. म्हटलं बघा का 5-10 वर्षाच्या वर तर आयुष्य नाही तुम्हाला, तर 10 वर्षात तुमचं हळूहळू तुमचं इन्शुरन्सचं काम होऊन जाईल, तुमच्या मागे यांचं सगळं चांगलं होईल. तुमचं बिडी तंबाखू काय ते चालू राहू दे. आणि आय टेल यू दे वॉन्ट लिव्ह फॉर मोर दॅन 5 to 10 years, and even if they live, that will be a big burden on this family, that wife and that child. So I tell them, तुम्ही काय, मी तुम्हाला समजावला बसत नाही, तुम्ही तुमचं इन्शुरन्स हे वाढवा, एवढंच काम करा आणि काय ते चालू ठेवा. राईट? एवढं ध्यानात ठेवा. Always keep this picture in your memory. When you start first glass, there and there only you should stop. Because then it is not like हाँ हर सैटरडे, सिर्फ सैटरडे, हाँ वो सिर्फ सैटरडे, वो सिर्फ सैटरडे का धीरे धीरे, अरे वेनिसडे को छुट्टी है, अरे थर्सडे को बाहर जा रहे हैं तो वेनिसडे को मिलते हैं ना, तो that becomes then Wednesday and Saturday. And slowly when it will become daily, you will never understand. You have to be very, very wise to be under control and drink alcohol. If at all you think you are that wise, and you may gain that wiseness after some years, you may think about it, but as a doctor I would say stay away from it. That is the best wiseness. These are the centers, these are the brain mapping. And in this brain mapping, it is shown the brain of a normal man, of an alcoholic man, of an obese man, and fourth one, alcohol and an obese man, right? आप देखेंगे कि red is showing a pleasure, that is excess dopamine, and dopamine secretion indicates you are very happy, you are living in a very pleasurable moments. मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, मैं बहुत खुश हूँ. आप देखेंगे alcoholic, obese and cocaine, all the three have more or less same effect in the brain. तो खुश रहने के लिए उनको हमेशा अल्कोहल चाहिए, खुश रहने के लिए उनको हमेशा कोकेन चाहिए, या खुश रहने के लिए उन्हें हमेशा शुगर चाहिए. ठीक है? और फिर लोग आते जाते पूछते रहते आप चाय पियेंगे, चाय पियेंगे. कहाँ गए वो चाय पूछने वाले? सुबह चाय हो चुकी थी ना आप लोगों की, फिर से हमारे महाशय आ रहे थे, पूछ रहे थे आप चाय लेंगे, भाभी जी आप चाय लेंगे, आप चाय लेंगे. ऐसे आदमी को पहले जवाब देना है डायबिटीज की दवा का पैसा भी साथ में दे दे. ठीक है? And if at all you think that sugar is not related with diabetes,
Some doctors 25-30 years back, जोशी सर एक 30-40 वर्षांपूर्वी modern science was not ready to accept. Even sugar lobby was responsible. They were not ready to accept, just like tobacco. Tobacco doesn't cause cancer. So many scientific references were given. Ultimately, it was proved. Even equally, sugar is not related with diabetes. It was said some years back. Now it is proved. Hence proved. Is this the picture in your house at night? Very good. क्या ये भी है? क्या ये भी है? Okay, so let us start thinking about it. इसमें पहले बच्चे के बारे में बोलते हैं. You know about the blue rays, all of you. ठीक है, इसमें से blue rays निकलते हैं. इसमें इन बच्चों के बारे में बहुत ही एक बहुत खतरनाक बात है. There is one pigment in the retina which can prevent some damage of the blue rays to some extent. That pigment is unfortunately absent in kids. तो जो बच्चे इस तरह ब्लू रेज के कांटेक्ट में आते हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला. And that is going to damage retina. That is दृष्टि पटल. Right? There is macula, there is one point is there, from there it gets reflected. ये macula ही damage हो जाएगा. Macula damage होने के बाद करीब you are blind. Do you know one thing? In presently, in medical colleges, which is the best stream where students are preferring to go? Ophthalmology. Why? It is said in coming 10 to 100 years, in every house, there will be visionary disabled person. हम में से बहुत सारे होने वाले हैं. तो सवाल ये उठता है कि हम ये इंटरव्यू देंगे, हम इस तरह एटीट्यूड रखेंगे, हम इस तरह एंटर करेंगे, हम इस तरह हंसेंगे, बहुत ज़रूरी है. एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम आर यू गोइंग टू बी विजुअली डिसेबल्ड व्हेन यू रीच टू 50? आर यू कॉन्फिडेंट? तो जो भी आज कर रहे हो, ये कितने साल उसका आनंद लेने वाले हो? I had been to one of the best ophthalmologists in Shivaji Hindu colony. जोशी सर साधारणपणे 200 ते 250 लोक बसलेले होते ओपीडी मध्ये. आय वॉज शॉक्ड. म्हणजे ओपीडी आहे की काय आहे? एवढा मोठा हॉल आणि हे प्रचंड लोक बसलेले. Then I also met one ophthalmologist in Mulund. She's a lady. And I saw वो हम लोग एक छोटा डब्बा मोबाइल यूज़ करते थे, मालूम है? चौकोनी सिर्फ फ़ोन. मेरी माँ के पास आहे, बिकॉज शी कॅनॉट यूज दिस स्मार्टफोन. म्हटलं मॅडम, म्हटलं हे का वापरता? मला शेवटपर्यंत माझ्या डोळ्यांनी बघायचं म्हणाले. मला शेवटपर्यंत वाचन करायचं आहे म्हणून मी हाच वापरते. इफ वी आर यूजिंग दिस स्मार्टफोन, बी अवेयर. आई रियल टेल यू. आपको मोबाइल कंपनीज वाले एंड अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस, दे विल टेल यू द प्रोज, दे विल नेवर टेल यू द कॉन्स. देयर आर डेंजरस कॉन्स. These blue rays are going to harm, are going to hurt, are going to injure your retina, no doubt about it. So reduce the period. आणि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि घंटा 2 घंटा मोबाइल ले लिया, चलो हो गया कि भाभी जी निकलती है और टीवी के सामने बैठ जाती है. फिर वो 2-3 सीरियल वगैरह हो गई, फिर वो लड़की के साथ जाके बैठ के लैपटॉप पे बैठ जाती है. वो लैपटॉप पे मेल देखना है, ये करना है, वो करना है. वो हो गया कि अरे इंस्टाग्राम अभी रह गया, वो इंस्टाग्राम का बाकी है. फिर व्हाट्सएप का घंटा. सो दैट इज, हैव यू एवर थॉट एवरेज एक्सपोजर ऑफ योर आईज टू द ब्लू रेज? टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल तो है ही है. तो जस्ट आस्क युअर सेल्फ, किती तास मी एक्सपोज करतोय स्वतःला? इट वुड नॉट बी लेस दॅन 10 hours a day. And all these have risk of not directly becoming blind, but various vision disorders. So please be aware of that. Reduce the speed, reduce the exposure, and at least try to reduce that light exposure. That is in our control. ना हम लोग कम कर सकते हो.
उसमें 2-3 बातें कुछ लॉजिकली हम कर सकते हैं कि वी नाउ कांट गो अवे फ्रॉम देम, बट एटलीस्ट सी टू इट दैट फ्रॉम वन ब्लू लाइट रेज डोंट गो टू अनदर ब्लू रे डिवाइस. कि मोबाइल रखा और टीवी शुरू किया वो मत करो, टीवी रख दिया और मोबाइल हाथ में लिया वो मत करो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुबह सुबह और रात सोने से पहले आवर आईज आर वीक. सुबह सुबह 1 घंटा और रात सोने से पहले 1 घंटा बिल्कुल मोबाइल को हाथ नहीं लगाना. इतना तो आप करो ही करो. स्पेसिफिकली यंग जनरेशन, आई नो वॉट यू आर डूइंग, डोंट टेल मी. Hundreds of young girls and boys are coming to me, their parents come to me just to for counseling. रात सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद करो. इसमें सबसे बुरी बात जो है, regarding your talent, your intellect, your career, your concentration will go down. Your speaking ability will be hammered, because speaking is correlated with the brain, with eye movements. That will be hammered. आप इस तरह फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे. कोरिलेशन विद द सब्जेक्ट विल बी डिस्टर्ब्ड. ये सब चलेगा आपको इस उम्र में? थिंक अबाउट दैट. इट इज़ नॉट दैट इजी. क्या अरे कुछ नहीं होता यार, नहीं, इट्स नॉट दैट. सो बी अवेयर ऑफ दैट. बहुत सारा लिखा है यहाँ पे हम एडल्ट लोगों के लिए एक बात जो हमें मालूम नहीं है, तुम्हाराही कळायला पाहिजे ती. ब्लू रेज एक्सपोजर सरप्राइजिंग है. इवन जब मैंने पढ़ा तो आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड. is related with male prostate cancer and female breast cancer. Blue rays exposure. Now how and what, that is a subject of research. You can go through the websites if interested, I can send you. तो यहाँ पे वो सब लिखा हुआ है. कैंसर्स के जो DNA डैमेज है, that has got something to do with the melatonin production. Melatonin should be produced at the right time, and whenever there is light, it hits your pineal gland through the eyes. Pineal gland is just at the base of the skull. Brain के नीचे pineal gland है. Controls the whole body. Pineal gland gives message to produce melatonin whenever you have to sleep, whenever you are supposed to sleep. Right? तो जब मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा तभी बॉडी में जो बैड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम हो जाता है. वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं. व्हाट आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स. और फ्री रेडिकल्स मारने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? हम लोग एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं. एंटीऑक्सीडेंट में आप ग्रीन टी लेते हो. क्यों? एंटीऑक्सीडेंट है. अगर डेली आप रात को सो रहे हो, डेली आप ब्लू रेस को एक्टिवेट ये कर रहे हो, तो जो एक्चुअल एंटीऑक्सीडेंट है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन द वर्ल्ड, मेलाटोनिन, प्रोड्यूस बाय द बॉडी इटसेल्फ. बॉडी को मालूम है अंदर हार्म चल रहा है. बॉडी को मालूम है कहीं पे कैंसर के सेल्स बडिंग स्टेज में है. मेलाटोनिन जाके उनको मार देता है. इफ वी डू ऑल दिस थिंग्स, एक्सपोजर टू ब्लू रेज, स्लीपिंग लेट एट नाइट, मेलाटोनिन डाउन होगा. एंड दिस इज द रीजन 500 टाइम्स कैंसर बढ़ेगा. क्योंकि कैंसर के सेल आज भी हमारे शरीर में बन रहे हैं. बॉडी किल्स देम. दैट किलिंग कैपेसिटी विल बी हैमर्ड. ठीक है? ज़्यादा डरना नहीं यार, इतने सीरियस मत हो जाओ. हाँ, हो. This is surprising. The brain mapping which is seen in paralytic patients, same picture was seen when you don't get the sleep. This is how not getting proper sleep damages your brain. And when I say not getting proper sleep, मैं 1 बजे रात को सोती हूँ और सुबह 10-11 बजे उठती हूँ. दैट इज नॉट अ प्रॉपर स्लीप एट ऑल. ठीक है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेता हूँ. व्हाट इज दिस? फर्स्ट वन ऊपर का क्या है? नीचे क्या है? मोबाइल में क्या चल रहा है वो? सो व्हेनेवर देयर इज सैचुरेशन, कचरा जम जाता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हम रिसाइकल बिन में वहाँ से वो सब क्लीन कर देते, सफ़ा कर देते. मोबाइल में अगर ये हो गया तो दैट क्लियर कैशे समथिंग इज देयर एंड दैट मे क्लियर इट. एंड हम ये सब रोज करते हैं ना. वी हैव टू डू इट. वी हैव टू कीप आवर मोबाइल एंड लैपटॉप एंड कंप्यूटर अपडेटेड. वी डोंट वांट कचरा इन आवर लैपटॉप. एम आई राइट? नाउ व्हेन जस्ट इन लास्ट 2 hours, 4 hours, you have seen hundreds of things.
You have listened to thousands of words. All may not be important for you. Right? Some important thing you will try to store. Unimportant things you will throw away. Right? अभी नीचे खाना देने वाला है तो खाने वाले को आप याद नहीं रखोगे ना, किसने खाना दिया? वो खाने के प्लेट का कलर कैसा था वो याद रखोगे क्या? बराबर है? Hundreds of unimportant things are there throughout the day. We have to throw them. We have to clean them. That is called brain's own cleansing system. Dangerous thing. Doshi sir, you will also be surprised. This cleansing of the brain, cleaning of the neurons, throwing out unwanted information, neurons which are packed with unwanted things, is done between 10 p.m. to 2 a.m. रोज रात को 10 से 2 में ये काम होता है. उसमें से 2 घंटा आप लोग पहले ही वेस्ट कर देते हो. यू आर नॉट गिविंग ब्रेन टू डू दैट वर्क बिकॉज यू आर नॉट स्लीपिंग. 2 घंटे बच जाते हैं. अगर उस वक्त में भी आप मोबाइल पे हो या काम में हो वगैरह वगैरह हो तो जस्ट इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. दिस इज द रीज़न वाई अल्जाइमर बढ़ने वाला है, डिमेंशिया बढ़ने वाला है, स्मृति भ्रंश बढ़ने वाला है. इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है. कचरा ब्रेन में बढ़ते जाएगा. एंड एज ए स्टूडेंट, एज अ करियरिस्ट, एज यू वांट टू बी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट और अ पर्सन, you need to have a powerful brain, smart brain, good intellect. इतना कचरा जमने के बाद ब्रेन का न्यूरॉन से आपस में कनेक्शन कम हो जाएगा. याद आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है. दिस इज द रीज़न. रात को पढ़ाई करने वालों को भी मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी कुछ भी बोले, रात को पढ़ाई करना इज नॉट द राइट टाइम एट ऑल, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग. ब्रेन इज डूइंग दैट वर्क. इसके ऊपर इतना रिसर्च कहा गया, दे वर स्टार्टल्ड. आयुर्वेद में एक सूत्र है जहाँ कहा गया है कि जिस तरह कमल या कोई फूल बंद हो जाता है उस तरह ब्रेन रात को बंद हो जाता है. इट इज़ प्रूव्ड नाउ. So whenever you are not sleeping before 10 or at least 11, think that you are injuring your own brain. Cleansing system is not working. कचरा जमते जा रहा है. रोज मोबाइल का कचरा जमाने में निकालने में बड़ा इंटरेस्ट है आपको. खुद के ब्रेन का कचरा निकालो. Right? Melatonin I explained you. Side effects from missing sleep, so many are there. All the way from obesity to diabetes, high blood pressure, this and that. So just you can read it. मुझे explain करने की ज़रूरत है. This is a one verse from Ayurvedic text which explains and which has proved to be true what are the actual benefits of sleeping at right time. And when I say sleeping at right time, it should be somewhere around 9 to 11. Now I consider 11 because you are used to it. Slowly try to bring it to 10 o'clock and see to it that you will wake up at least before sunrise. At least before sunrise, see the improvement in your performance, see the improvement in your health, your intellect, your diseases. If you are suffering, it may be any. Just wake up before sunrise and see the improvement in your health. This was my next point. Waking up late, सुबह देरी से उठना. आज यंग जनरेशन की जैसे फैशन बनते जा रही है. On and average, they wake up at 9 o'clock. And some are slightly lazy who wake up at 11, and those who are really lazy, they wake up after 12. वरना ज़्यादातर सब 9 से 11 तक उठ जाते हैं. मैं आपको इस शब्द में बता देता हूँ, आपका मेटाबॉलिज्म इतना खराब हो जाता है अंदर का कि दिस पीपल विद इन 2 डेकेड्स 10 से 20 साल में डायबिटीज़ के पेशेंट बनेंगे. दे विल हैव वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म एकदम लो हो जाता है. चयापचय शरीराचा एकदम खराब होऊन जातो उशिरा उठणाऱ्यांचा. every living being except some exceptions will wake up and will be active during sunrise. They are, except this human beings who like to sleep late at night. अभी इसमें बहुत सारे
प्रोज एंड कॉन्स है, इसमें डिस्कशन है, डिबेटेबल सब्जेक्ट है, नाइट ड्यूटीज़ वगैरह वगैरह वगैरह. बट दैट इज़ अपार्ट. व्हेन यू डोंट हैव ऑप्शन, forget about it. Just forget about it. If you have option, sleep early, wake up early, and see the improvement in your health. And I think this is in European countries, this movement is going on everywhere. 4 a.m. movement. 4 बजे सुबह उठो and see the difference. And this was the reason I had that day. I am proposing that the whole government, the whole country, all businesses should start their offices at 7 a.m. Automatically people will wake up at 4 a.m. Right? Between 4 to 7, if you are active, do you know what happens? Blood sugar normal, uric acid normal, CRP high रहता है आजकल, कोरोना में सबका रहता था. CRP goes normal. Your metabolism is healthy. Your intellect is good. You get plenty of time to work. You get plenty of time to do yoga, exercise, whatever it is. By 7 o'clock you will reach home to office. 3 or 4 o'clock you will be at home. 4 to 9, complete 5 hours for your own satisfaction, for your own interest, for your own family, and you will sleep automatically by 9 or 10. Most of the lifestyle diseases will be under control. So easy, so simple. Otherwise, if we all of us are going to suffer from so many major diseases, how are we going to be the fit country? This can be a simple solution. Wake up early, sleep early. This is the present scenario of India. हमारे धर्म का हमें कितना गर्व है हमें पता नहीं, हमारे संस्कृति का हमें कितना गर्व है हमें पता नहीं, लेकिन हमारे बड़े पेट का हमें बहुत बड़ा गर्व है. Reasons are many. Reasons are many. Because some say it is genetical. Let me ask you, when I was a student, or I don't see much of senior people here, हम जब स्टूडेंट थे, हम जब छोटे थे, तो हमारे पूरे स्कूल में एकाध मोटा लड़का रहता था. क्लास में शायद एकाध मोटी लड़की, एकाधा मोटा लड़का. पूरे गली में एकाध मोटा आदमी रहता था, पूरे गली में या पूरे गांव में. Now in every house there is mota or moti. Now this is not a pride. And as I say, ये change करने को थोड़ा समय जाएगा. At least open the eyes. At least start making changes. And keep in front of you Chinese and Japanese people. All are lean. Most of them are lean. Why can't be? What are the reasons? एक 7-8 मिनट. Many reasons are there. Many reasons are there. Sitting disease we already discussed. But only culprit which has positively helped Indians to gain weight, to increase the size of their bellies is I'll tell you one thing. This is Sir Robert McCarrison. He formed one institute which is today's Indian Institute of Nutrition at Hyderabad. And he studied various communities in India, tribal communities, or say Gujarati community or Marathi community, and their food and diet. For more than 50 years he studied. And in 1921, he gave one lecture in Pittsburgh University. उसके शब्द को मैं हिंदी में बता रहा हूँ. वो कहता है उन लोगों को कि हम यहाँ इंग्लैंड में जितनी शक्कर एक दिन में खाते हैं, वो एक दिन की शक्कर पूरे इंडिया को 1 महीना पूरेगी. इतने इंडियन लोग शक्कर कम खाते हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है, सर मैककैरिसन सेज, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों में कैंसर नहीं है, उन लोगों ने मैंने डायबिटीज़ नहीं देखा, उन लोगों में मैंने ओबेसिटी वगैरह तो देखा ही नहीं. और उसका कारण है कि वो लोग शक्कर नहीं खाते. 1921. Today's picture is this. We are the producer of sugar, number 2 in the world, and we are the consumer of sugar, number 1 in the world. मैं इस पे बहुत बोलता हूँ. This is my subject of interest. My book is coming. गुनहगार कौन? साखर की चर्बी.
गुनाह किया किसने किया? चर्बी ने किया, तेल या घी ने किया, शक्कर ने किया, राइट? In short, I'm telling you, diabetes, you know only diabetes. The sugar can cause diabetes, right? Central obesity, पेट बढ़ने का सबसे मुख्य कारण शुगर है, सबसे मुख्य कारण, बराबर है? और बहुत बुरी बात जो हम जानते नहीं है, budding cells of cancer in everybody, as I said, they are there. कैंसर का फीड शुगर है, कैंसर सेल्स का खाना शक्कर है. पेट scans, we go for PET scan, right? In PET scans, what do? They inject you glucose. And when that glucose is injected, those cells which are cancerous cells, they immediately start shining because they start absorbing sugar and they are visualized in the MRI. Clear? शुगर के वजह से पेट स्कैन में कैंसर सेल्स दिखते हैं, हेंस प्रूव्ड. शुगर इज द फीड ऑफ कैंसर सेल्स. 500 टाइम्स कैंसर बढ़ने के कारण बहुत सारे हैं. लेट नाइट स्लीपिंग, ब्लू रेज, बट दिस आर ऑल अंडर आवर कंट्रोल. ये 500 टाइम्स का शायद हम 100 टाइम्स कर सकते हैं. एंड माइंड यू, इन एवरी फैमिली देयर इज पॉसिबिलिटी. 500 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? इन एवरी फैमिली. And we can't afford the treatment of cancer. ये नहीं चाहिए हमें, right? For you specifically, young generation. No. See, ऐसा है. This is how we are going to change. हाँ? आपको मैं, ये मेरा खुद का एनालिसिस है. मैंने शॉप्स पे, मॉल पे घूम के, मेरे आने वाले बुक में ये है, मराठी में लिखा है, लेकिन यू कैन गो थ्रू दैट. ये है क्या इसमें? क्या ना? यस, स्पर्क इज देयर. गुड, जस्ट गो थ्रू दैट. एक कैन यू बिलीव, किसी को मालूम था की इतनी शक्कर मिळती आहे? आणि मुद्दाम मी मराठीमध्ये किती चमचे दिलेले, કેટલો ચમચે आपण लिखेलं છે यहाँ. कैन यू बिलीव? एंड देन वी से ऐसे मोटे हो रहे हैं और ऐसे बच्चे मोटे होते जा रहे हैं. नेक्स्ट टाइम आई वांट टू सी रोटरी क्लब गिविंग ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स और सम हेल्दी आइटम्स. डोंट सी. मैं थोड़े अच्छे मूड में था. कहाँ गए? अच्छे मूड में था. Otherwise, I tell them, you are giving poison. This is poison. Because once you start with this, let me go with next point and then Joshi said, "डोळे मोठे करतायत." See? Same with the biscuits. Yeah. हे पण मला असं वाटतं यंग जनरेशनने हे कमी केलं असं माझं निरीक्षण आहे. Am I right? You have stopped, you have controlled consumption of colas, am I right? But still, for your information. Yeah, I'll go. You will not believe this, huh? You will not believe this. Even when I studied this sitting in the malls and shops, I again and again I counted this. Then I talked to one of my mathematician friend. आणि मी काय चूक करतोय का रे? एवढं कसं असेल? Can you believe? This Hrithik Roshan, who is telling you to drink Mountain Dew, he will not touch it. Huh? Mountain Dew is giving you 12 चम्मच शक्कर. This Katrina Kaif, she is telling you to drink Maaza, 13 चम्मच शक्कर. इतना बड़ा पेट हो जाएगा कैटरीना कैफ का, कोई देखेगा नहीं उसके पास. Just imagine, what are we getting? त्या रामदेव बाबांनी तर एवढा फार मोठा एहसान केला ना क्या देशावर, की ठंडा मतलब that is absolutely right. It is poison. So, what I was saying, I want to come to one point which is very important. When I was studying during 1990s, I never saw children suffering from diabetes. At least in our communities, we good middle class people. Since last 10 years,
I have seen 12 children in Mulund who are taking insulin injection now. All the way from 3 to 12. They are on insulin. What would be their future, you can imagine. And this is going to happen in our families now. आपको आपका बच्चा नहीं चाहिए डायबिटीज़ वाला, आपको आपका पोता या पोती नहीं चाहिए. You young generation, please be aware. It will start from you. You start consuming this, that sugar remains in your cells. When you reproduce, it will be passed. And in 1 or 2 generations in those families, diabetes comes. Unfortunately, it was our impression that in particular community, diabetes DM2, diabetes type 2 is seen. In particular communities, North Indian communities. उनमें डायबिटीज़ बच्चों में देखा जा रहा था, लेकिन अभी मैंने मुलुंड में सभी कम्युनिटी के बच्चों में देखा है, which is very very bad. No future for them. It is very difficult. Daily taking injection and you know that. तो ये सब इसलिए बंद करना है, हमें नहीं चाहिए ये. Don't serve tea. Don't eat chocolates. No biscuits. No cakes. And what I say, as I said, you are young and you should enjoy. You are intelligent. I saw you, the way you are speaking. Find options. Make it without sugar. Make cakes without maida. Make biscuits without maida. They are available are there. You can go for them. And keep it to, say, some restriction should be there. कि भाई एक आध बार enjoy करो ना. We should enjoy pizza. We should enjoy burger. But it should not become a daily practice. आज दुर्भाग्य से आज और ये दुर्भाग्य से लोअर कम्युनिटी में देखा जा रहा है, लोअर क्लास ऑफ कम्युनिटी, that is socially and economically, I don't mean to say by caste, since they are not affording, most of the lower socio-economic people, they are consuming daily chai pav and chai khari and chai butter. And most of them are obese. All मोटे हैं, सभी मोटे हैं. मोटापा बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापे की वजह से कम 10 बीमारी आएगी. You can have our normal food which is cooked here. इसमें मैं हमेशा एक बोलते रहता हूँ. This is what I was saying, कि all Indians who are getting daily feed, daily supply of sugar, daily supply of sugar, daily supply of sugar. आफ्टर एवरी नाउ एंड देन, सुबह में चाहिए, दोपहर को चाहिए, शाम को चाहिए, रात को चाहिए, अभी हो गया उसके बाद चाहिए, दोपहर को खाने के ऊपर भी चाहिए. See, when food is consumed, body is producing insulin, right? It is controlling the sugar. Okay, body is happy, चला सब काम हो गया, अभी शांति से बैठते. घंटा नहीं हो गया, अरे क्या आ गया ऊपर से, अरे चाय आ गया, अरे और इंस्टेंट बनाओ. ठीक है, वो चाय के साथ 2-4 बिस्किट, हाँ एक केक खाया, फिर शाम को घूमने गए, वहाँ जाते जाते वहाँ पे पेस्ट्री खा लिया. और बोलते कितना इंसुलिन बनाऊँ मैं. And actually this happens and your pancreas gets tired. It gets tired of producing insulin. अरे कितना बनाओ बाबा, कितना खा रहा है शक्कर. Have you ever thought कि कितने फूड में से हमको शक्कर मिलती है. एक बार बैठ के निकालिए, आप सब होशियार लोग हो, घर वालों से बैठिए, कौन से फूड में से हमको शक्कर मिलती है. एक्चुअल शक्कर, हाँ, चावल में, गेहूं में, दाल में, फलों में है, वो रहने दो, वो तो चाहिए हमें. राइट? प्लीज स्टॉप शुगर. एंड आई से नॉट लेस, नॉट मोर, स्टॉप शुगर. वी डोंट वांट शुगर एट ऑल, वी डोंट नीड इट. 7 से 8-10 दिन थोड़ा लगता है हमको, बट उसके बाद जो हेल्थ में फर्क गिरेगा, दिमाग में फर्क गिरेगा. सी द डिफरेंस. If you want to be intelligent, in between the two neurons, there is a blockage of amyloid, which is of sugar. कम रखिए, मीठा चाहिए ही क्यों? We all from, नहीं, एक हम छोटे बच्चे जन्मे आए, हमने सभी ने माँ का दूध पिया. वो माँ का दूध बिना शक्कर का ही है ना. इट कंटेन नेचुरल शुगर. एंड दैट किड, दैट इन्फेंट इज वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड.
he becomes healthy. वो बच्चा जब 1-1.5 साल का होता है तो आप चाहते हो कि वो दूध पिए, और वो दूध पिए इसलिए आप उसमें शक्कर डालते हो, एंड यू मेक हीज हर टंग बर्ड्स यूज टू स्वेट. जैसे आप बंगाल के रसगुल्ला रसमलाई खाओ तो आपको सादी मिठाई मीठी लगती ही नहीं है. सो दिस इज लाइक अ प्रैक्टिस. जरूरत ही क्या है? गुड़ कैन बी ऑप्शन, शक्कर को ऑप्शन रखो, लेकिन फिर वो भी कम रखो, वरना शक्कर इतना मीठा बनाने के लिए आप इतना इतना गुड़ डालेंगे तो वही हो गया. सो गो अवे फ्रॉम स्वीट्स स्लोली. दिस इज अ research done by one biologist. His research reference is given below. If you want, you can go through that. He has done a complete research. He did a actual experiments. और उसने ये प्रूव किया, सिर्फ 3 चाय दिन में 365 days if you consume containing only, अरे कितना शक्कर डालते हैं, 2 ही तो चम्मच डालते हैं. How much gain of weight? 4.5 kg of fat. और वही वो यहाँ से आ जाता है, बिना प्रेगनेंसी के पेट आ जाता है. हाँ, और हमको लगता है, एंड व्हेन आई टेक हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स, तो वो नहीं कुछ नहीं खाते, मीठा तो कुछ नहीं खाते. हमारे ये तो बिल्कुल उनको मीठा पसंद ही नहीं है. अरे चहा कड़ू असतो का है? चाय कड़वी होती है क्या? कुछ मीठा नहीं खाते क्या? जस्ट गो होम एवरीबडी, सी द एवरेज परचेस ऑफ शुगर 2 kg divided by 4 people, 500 ग्राम कंजम्पशन ऑफ शुगर हर एक आदमी का हर महीने को हो रहा है. इतना आसान है. ठीक है, चलो ये एक ले लेता हूँ और मैं बंद कर देता हूँ. ब्रेकफास्ट सीरियल्स आज के मॉडर्न जनरेशन का, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू एंटर इन प्राइवेट कंपनीज, कॉरपोरेट हियर एंड देयर. आपका रोज का सुबह का नाश्ता ये हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए. दे कंटेन लॉट्स ऑफ शुगर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शुगर, राइट. वन मोर थिंग, दिस इज नॉट अ फूड. ये फूड है ही नाही. मानवाने खाण्यासाठी हे फूड नाही आहे, अन्न नाही आहे. दिस अंडरगोज 14 machinery procedures. Did you know that? 14 machinery procedures, and then it becomes a breakfast cereal. ये क्यों किया? Useless Americans, जिन्हें कोई भी आहार की परंपरा नहीं, they don't know anything about food, कोई हिस्ट्री नहीं, उसके पीछे साइंस नहीं, सालों का तजुर्बा नहीं, कुछ नहीं. जो मुर्गी मिली, अरे मुर्गी खाओ, अरे वो ये क्या, उसको काटो, उसको खा के खाओ, अरे फिर क्या, अरे जला के खाते हैं, अरे नहीं इसे वैसे ये नहीं खाया जाता है, उसको ना किस में डाल के डालना चाहिए. अच्छा, ये वो ब्रेड बनाए, फ्रांस में ब्रेड बनाए, तो फ्रांस में से ब्रेड लाए, वो फ्रेंच लोग ब्रेड लेके आए, वो ब्रेड के 2 पीस लो, उसके अंदर वो डालो चिकन बिकन जो भी है वो. अच्छा, अरे नहीं, लेकिन ऐसे खाना गलत है, साथ में कुछ वेजिटेरियन कुछ होना चाहिए, कुछ तो घास फूस होना चाहिए. 2-3 पत्ता डालो उसमें, लेटुस फिटूस अंदर डालो. फिर कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा, अरे ये तो बहुत सूखा सूखा हो जाता है, वो इतना सूखा नहीं खाना चाहिए, वो थोड़ा क्रीम बीम डालो, मायोनीज बियोनीज कुछ लगाओ, चीज़ बीज लगाओ. फिर किसी ने बोला, अरे अमाइनो एसिड्स वगैरह कुछ होने चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, तो ऊपर थोड़ा बहुत सेसमे डालो, तिल डालो ऊपर, और इस तरह आपका चीज़ बर्गर बन गया. बिकॉज दे डोंट ईट सीरियल्स. वो लोग गेहूँ चावल वगैरह खाते ही नहीं थे हजारों सालों, कुछ 200-400 सालों से. हम दिन में कम से कम 2 से 3 बार सीरियल्स खाते हैं, या तो गेहूँ, या तो चावल, या तो नाचनी, या तो ज्वारी, या तो बाजरी. मोर देन 15 सीरियल्स आर अवेलेबल इन इंडिया. और जो वहाँ के लोग जानवरों को खिलाते हैं, वो ओट्स हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे, विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट. इंडियंस कैन नॉट डाइजेस्ट ओट्स. खा के देखिए, ठीक है. तो इस ब्रेकफास्ट सीरियल से दूर रहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कॉज ऑफ ओबेसिटी. सीरियल से दूर रहना. आई विल जस्ट टेक यू, सी दिस सरप्राइजिंगली, कोकेन इज एडिक्टिव. यू नो दैट, दिस इज अ ब्रेन मैपिंग. कोकेन इज एडिक्टिव. कोकेन का एडिक्शन हो जाता है, शुगर का एडिक्शन हो जाता है. स्लोली गेट आउट ऑफ इट. दिस इज पिज़्ज़ा एंड बर्गर. रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर रहिए. एज आई सेड,
this curry, butter, toast, pav. Unfortunately, those who cannot afford other things, they have to go for it. But at least see to it that you'll be working more, you'll be doing exercise, you'll be running, you'll be sweating. ये एक बात है जो हमको हेल्दी रख सकती है. Whatever work you may be doing, always make a practice of consuming at least 3 fruits in a day. और ये ध्यान रहे, एप्पल बहुत अच्छा फल नहीं है, सबसे अच्छे फल सब भारतीय फल है. चीकू बहुत अच्छा है, करवंद सबसे अच्छा है, आंवला नंबर 1 है, पेरू बहुत अच्छा फल है, पपाया बहुत अच्छा फल है. इन सब के सामने एप्पल का न्यूट्रिशन वैल्यू माइनस में जाता है, ध्यान रहे. ईट सिंपल इंडियन फ्रूट्स, मिनिमम 3 fruits in a day. There are many factors which are negative to Indians. कुछ जेनेटिक्स है वगैरह वगैरह, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे यहाँ पे इतनी बीमारी नहीं है. और उसका एक ही कारण है, हम हमारे घर में कम से कम 2 या 3 बार सब्जी खाते हैं. आई अपील, आई रिक्वेस्ट ऑल यंग जनरेशन्स, घर में कम से कम 2 बार सब्जी बने, इसका ख्याल रखो. आपके घर में, आपके आने वाले घर में सब्जी आपको कैंसर से बचाएगी, हार्ट डिजीज से बचाएगी, थायराइड से बचाएगी, ओबेसिटी से बचाएगी, बहुत से बीमारियों से बचाएगी. घर में ताज़ा सब्जी बनाना ये इंडियंस की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, एंड इट हैज़ प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम सेवरल डिजीजेस. प्लीज़ कंटिन्यू दैट ट्रेडिशन. और लड़कियों के साथ लड़के भी सब्जी बनाना सीखे, ये बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि सिर्फ लड़कियां बनाएगी, वो काम पे जाती है तो तुमको आपको घर पे सब्जी बनाना चाहिए. I will stop here. Understand importance of sunlight. There is lot to say, not just vitamin D. This is the end of my subject. It is not just vitamin D. There is far, far beyond vitamin D. Please understand, if you are not in contact with sunlight, you will not live a long life. If you are not in contact of sunlight, you will not live a healthy life. It's so simple. अगर हमें अच्छी करियर करनी है तो see to it, approx 20 to 30 minutes exposure to sunlight in a day, any time is enough. Do that. Do that. Now researches are coming, you can kill cancer cells just by taking sunlight. जो 25-30 साल से आप में से कुछ वाइज लोगों को मालूम होगा, सनबर्न को कह रहे थे कि सनबर्न की वजह से कैंसर होगा, which is proved wrong. Sunburn is a sign of protection towards cancer. You can take sunlight 20 to 30 minutes and diabetes, blood sugar control रखने में, blood pressure control रखने में, जो major disease है उसको control रखने में sunlight is very useful. So simple. If you see, answers are very simple. Disease बहुत बड़े बड़े लगते हैं, केवड़े भयंकर आजार है, but solutions are very simple. Ultimately, good things come to those who sweat. Ask yourself, how much exposure am I giving to my body to sunlight, and how much do I sweat in a day? If you take care of all these things, I'm sure you will achieve this goal. Dhanyawad, Doctor, for a wonderful presentation. Yeah, I request President Ashwin to offer a small gift to him. Now there will be a lunch break of 45 minutes. President Malde sir and Ganatra sir, secretary, and my beloved friend Sudhir Joshi sir and Smita Joshi, Seema Joshi, and all of them and all of you Rotarians. I know all of you are doing a good work. Please continue your work. I will always be there whenever you invite me. Thank you so much for inviting me. Thank you, Doctor. So there will be a lunch break. Lunch is served downstairs. नीचे खाना लगा हुआ है.